Hi guys, welcome back to the Legal Vibe. I'm your mentor Shaurya Goswami, and for those who don't know me yet, I am a student at Nalsa University of Law, and I was AR 133 in class 2024, and I run this channel along with Pari Luthra. She's my batchmate, obviously. So a lot of you have already started preparing for CLAT 2026, and I've been bombarded with the questions about mocks कि यार कितने mocks दें, कैसे mocks दें, कब दें, कैसे पूरा करें, और ये सारे questions. So मैंने सोचा कि क्या करते हैं, एक वीडियो ही बना लेते हैं. So this video is going to be in a Q&A format. तुम लोगों ने मुझे जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं अभी मॉक्स के रिगार्डिंग, मैंने वो सारे क्यूरेट कर लिए हैं. वन बाय वन आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट मॉक्स. तो मॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, मोस्ट प्रोबब्ली वो सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे. एंड इन केस अगर कुछ रह जाता है, ऑब्वियसली मैं ह्यूमन बींग, सो कुछ रह सकता है, कुछ रह जाते तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड देन आई कैन आंसर योर डाउट्स राइट इन देयर. और तो मैं बैकग्राउंड में आज ट्री दिख रहा होगा बिकॉज ऑब्वियसली मैं नालसार में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ एग्जिस्ट करते हैं. So before we get forward with the video, I'd like to draw your attention to the fact that Oswal Books have introduced their latest collection of 10 mocks for CLAT UG, which are perfectly curated for CLAT 2026. Look at the next clip for more details, and the link is in the description box, so go get them. So this is the book I was talking about by Oswal Books, 10 mock test papers for CLAT UG. So let's look into the book. This is the contents. They have tips and tricks for CLAT and latest syllabus for CLAT, eligibility criteria, NLEO 2024 cutoff, 2024 to 2025, and NRF ranking. So this helps you while you select your college preferences. And then they have trend analysis, like what kind of questions has been asked in from 2025 to 2021 CLAT. And then it starts with the first paper, the last year, previous year solved paper 2025, and then they have 10 mocks completely curated by them as per the syllabus. They have answer keys and everything, so you can surely look into this book. The link is in the description box, so go get it. Going forward with our video, proceeding with it further, let's start with the first question, and that is obviously when to start giving your mocks. मॉक्स कब से देना स्टार्ट करें, प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दिए, क्या सिलेबस ख़त्म करें पहले या फिर 2-3 महीने बाद जब हम हमारे क्लैट का प्रिपरेशन हो जाए, देन वी स्टार्ट गिविंग द मॉक्स. सी द वन सब सोल्यूशन टू दैट थिंग इज यू ऑलवेज स्टार्टेड प्रिपरेशन बाय गिविंग अ मॉक. सीरियसली, सो यू हैव टू गिव मॉक्स as soon as you have started preparing for your CLAT exam, because this is very 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 important. There is no syllabus for CLAT as such, and you can't actually wait to complete the syllabus first and give the mocks then. It is not like other exams, right? So there is no syllabus. Your preparation shapes according to your performance in your mocks itself. So you have to start giving your mocks from the first day of your preparation. I've always told my mentees that when you start preparing for your CLAT exam, your first mock should be the last the previous year question paper. So if you are starting your preparation now, and if you have already started your preparation, so you should actually attempt CLAT 2025 का question paper एक बार. उसके बाद you start your preparation, so that it can give you an idea कि यार हाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ stand करते और कहाँ जाना है. So the answer is give a mock whenever you start preparing from the very beginning onwards. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक. एक मॉक ठीक से अटेम्प्ट कैसे करते हो. देखो यार, अगर तुम्हें मॉक में स्कोर लेके आना है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि तुम वो मॉक अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, तुम्हारी वो मॉक में स्ट्रैटेजी क्या है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम मॉक स्टार्ट होने के पहले आधे घंटे पहले जहाँ भी तुम मॉक दे रहे हो वहाँ पहुँच जाओ. इफ़ दैट इज़ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट और एनीथिंग, आधे घंटे पहले वहाँ पहुँच जाओ. 15 मिनट पहले सिट ऑन अ सीट, शट डाउन योर फोन एंड डोंट टॉक टू एनी वन. ओके, 15 मिनट्स पहले जो तुम्हारे एग्जाम के 5-10 मिनट जो पहले वाले होते हैं ना, जो मॉक के और पर्टिकुलरली और क्लैट एग्जाम के, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उन पर्टिकुलर टाइम में यू हैव टू बिल्ड योर माइंड सेट कि यार मैं मॉक देने जा रहा हूँ, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि ये मॉक मुझे ख़त्म करना है 120 मिनट में, एंड ऑल ऑफ दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड सेट फॉर दैट, एंड देन यू हैव टू सिट एंड गिव योर मॉक. मॉक देते समय मेक श्योर तुम 120 मिनट में उठ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, बिकॉज एग्जाम हॉल में भी तुम ये नहीं कर पाओगे. बीच में उठना अलाउड नहीं होता एग्जाम में, जब तुम्हारा एग्जाम चल रहा होता है. तो दैट इज़ वॉट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर. आधे घंटे पहले आओ, 15 मिनट पहले लोगों से बात करना बंद कर दो, स्टॉप एवरीथिंग, फोकस ऑन योर मॉक एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मॉक. एंड मॉक देते समय 120 मिनट में उठना नहीं है. पानी लेके बैठो, वॉशरूम जाना ऑलरेडी जाके बैठो, बट यू हैव टू डू इट
इन पर्टिकुलर दैट वे, बिकॉज ऐसे ही तो आदत लगेगी ना कि एग्ज़ाम वाले दिन तुम ठीक से 120 मिनट वहाँ पर बैठ पाओगे। टू बी ऑनेस्ट तुम्हें आधे घंटे पहले से ही बैठना होता है, राइट? So that is how you attempt your mock, and seriously, this is the first and very important thing that you do to maintain a good mock score, that you attempt it properly. The next question is how to complete the mock on time and what should be time division. देखो यार, एक mock टाइम पे कंप्लीट करने के लिए पहले तो तुम्हारा दिमाग ठीक होना चाहिए, तुम एकदम अच्छे दिमाग से mock देने होने चाहिए, वो तुम करने वाले हो mock स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले से। और टाइम डिवीजन क्या होना चाहिए आइडियल, तुम 25 मिनट्स आरसी को दो, 25 सीआर को दो, 20 मिनट्स मैथ्स को दो, एंड 35 मिनट्स लीगल को दो, 10 मिनट्स जीके को दो, एंड 5 मिनट्स रखो OMR शीट फिल करने के लिए। दिस इज हाउ यू डू इट। और बाकी तुम क्या कर सकते हो, 15 मिनट्स मैथ्स को दे सकते हो, एंड बाकी जो तुम्हारे पास 10 मिनट्स बच रहे हैं तुम 2-2 मिनट करके हर एक सेक्शन में डिवाइड भी कर सकते हो, एज हाउ एवर इट वर्क्स फॉर यू। और मॉक कंप्लीट करने का ना, देखो मेन यही फॉर्मूला होता है कि तुम हर एक सेक्शन को पर्टिकुलर टाइम अलाउ कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर रहे हो। तुम लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैथ्स के 20 मिनट्स हैं तो मैथ्स के 20 मिनट्स हैं, तुम्हें वो टाइम किसी और को नहीं देना है। अगर सीआर के 25 मिनट्स है, तुमने 4 पैसेजेस, एक 2-3 पैसेजेस कर लिए हैं, एक पैसेज बचा बट 25 मिनट्स खत्म हो गए हैं, सो मूव फॉरवर्ड टू अनदर सेक्शन। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपने मॉक को करते समय, ताकि तुम एक सेक्शन ही ना करते रह जाओ और बाकी के सेक्शन छूट जाए। वो नहीं करना होता, बिकॉज मॉक करते समय तुम्हें ध्यान रखना होता है कि तुम you are able to get out the easiest marks first, and that is why you need to attend all of the sections necessarily. And if that is happening, that you can do only 3 paragraphs in particular 25 minutes of CR, then how do you improve that? How do you do that on time? How do you do 4 passages, all of the 4 passages of CR in particular 25 minutes? So that happens when you practice more and more and more. So if you have just started giving your mocks, if you have just started preparation, you should not be worried about completing sections on time. Okay, you should be worried about, or you should focus on proper time management, that how you are dividing your time in the mock. This is the most important thing that you have to start with right now. And over the period of time, when you cover particular concepts and your concepts like assumptions and the concepts of reading comprehension, all of that gets brushed up and develops, the skills develop, you'll be able to complete all of this in particular time. Okay, so at this point mock time पे complete करने का the formula is you give the allotted time to the particular section, को छूट रहे तो छूट जाने दो. That is how you have to go about it from now. Okay, next question that comes up is how many mocks should you give in your entire preparation? देखो यार, to be honest, it's a very personal question. It depends entirely on you. It's a very subjective question. मैंने अपनी preparation में 99 mocks दिए थे. My 100 mock was my CLAT. But तुम अपने हिसाब से देख सकते हो यार. देखो मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है टाइम्स में. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मॉक्स कितनी फ्रीक्वेंसी में देने चाहिए. अभी एक मॉक एक वीक में दो, एक वीक में एक ही मॉक दो अभी, ठीक है. आगे जैसे जैसे तुम जाओगे लेटर मंथ्स में तुम 2 मॉक्स अ वीक देने लगोगे, फिर 3 मॉक्स अ वीक देने लगोगे. माइट बी अ टाइम जब तुम रोज़ रोज़ एक मॉक दे रहे हो. तो दिस फ्रीक्वेंसी डिफर्स लाइक दैट. बट एज लॉन्ग एज तुमने 40 to 50 मॉक्स दे दिए, यू आर गुड टू गो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द डे शुड यू गिव योर मॉक. देखो हमारा क्लैट होता है 2 to 4 PM इन द आफ्टरनून, और to be honest that is the most suitable time to give your mock. But somehow अगर तुम लोग you can't pull that off, you can also give your mock from 12 to 2 or from 10 to 12. That also works, but the best possible ideal time is 2 to 4, because you have to see 2 से 4 वाला समय होता है ना कि दिन हो रहा होता है, लंच वंच क्या होता है, नींद आ रही होती है. so you have to make sure दैट तुम्हें वो 2 से 4 ऐसे जगने की आदत लग जाए, अटेंटिव रहने की आदत लग जाए. और अगर तुम अभी से ऐसे उस पर्टिकुलर टाइम में मॉक दोगे, सो दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू ट्रेन योर ब्रेन कि यार 2 to 4 में हाईएस्ट एफिशिएंसी में रहना है. तो व्हाट टाइम ऑफ द डे 2 to 4 PM, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू योर मॉक इन इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. एंड अगेन द फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, हाउ डू यू लाइक कितने मॉक्स देने हैं एक वीक में. अभी एक ही मॉक देना है एक वीक में. आगे चल के एज टाइम कॉन्टिन्यूस, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया भी है कि हाउ डू यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मॉक्स, तो तुम वो भी जाके देख सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक्स दें या फिर बस अपने ही इंस्टीट्यूट के मॉक्स देते रहें. तो फॉर दैट आई लाइक टू से दैट भाई डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि देखो
तुम किसी एक इंस्टीट्यूट के मॉक दे रहे हो, बट अगेन उस इंस्टीट्यूट ने क्लैट को पैसे तो नहीं दिए ना कि वैसा वाला मॉक आने वाला है ऑब्वियसली। और क्लैट एज एन एग्जाम इज अ वेरी 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 अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स। अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस दैट, एंड probably all of us know that CLAT is a very 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 unpredictable exam. So उसमें ऐसा है कि तुम जितना ज़्यादा वेराइटी से एक्स्टम्प्ट हो जाओगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। इस बार किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक दिया है, अगली बार किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक दो, अगली बार किसी और इंस्टीट्यूट का मॉक दो, बिकॉज क्लैट का पेपर कैसा भी आ सकता है। और जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि कैसा भी पेपर है तुम पेपर के अकॉर्डिंग वहाँ से बेस्ट मार्क्स अपने एक्सट्रैक्ट कर पाओ। सो उसके लिए यू हैव टू गो गिव डिफरेंट इंस्टीट्यूट के मॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप इज, और ये तो लिटरली मुझसे लोगों ने 1000 बार पूछा है, व्हाट स्कोर इन मॉक्स इज़ अ गुड स्कोर। मैंने इतने सारे लोगों को मेंटर कर दिया भाई, सब ये पूछते हैं कि यार मॉक में कितना स्कोर आना चाहिए, कितना स्कोर अच्छा होता है। यार इट टोटली डिपेंड्स। इस टाइम पे अगर तुमने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो तुम्हारा स्कोर अगर 20 और 30 भी आ रहा है, इट्स ग्रेट। सीरियसली इफ यू जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, मॉक स्कोर 20-30 आ रहा है, ग्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे एज यू गेट क्लोजर टू योर एग्जाम, दैट इज व्हेन योर मॉक स्कोर शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, जुलाई से पहले तुम्हारा मॉक स्कोर मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज लॉट इज गोना चेंज जब तक। और इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि अभी तुम्हारा फोकस तुम्हारे मॉक स्कोर पर ना हो। सीरियसली मोर और लेस यू हैव टू सी कि तुम बाकी सारे फैक्टर्स है, टाइम मैनेजमेंट एंड 120 मिनट तुम बैठ पा रहे हो, वो सारी चीज़ों पर तुम ध्यान दो। और देखो इस टाइम पे अभी जैसे आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग काफ़ी पहले से, तो इस टाइम पे मेरा स्कोर वाज अराउंड दैट इन दैट मॉक अराउंड 60 एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी। बट ऐसा होता है कई सारे लोग हैं जिनके मार्च में या फरवरी में जिनके स्कोर्स ऐसे बहुत बढ़िया आ रहे थे, 70-80 आ रहे थे, एंड क्लैट आते हैं तो उनके स्कोर्स बिल्कुल ख़राब हो गए। सो इट डजंट मैटर। अगर तुम्हारा स्कोर अभी 20 या 10 भी आ रहा है तो यू कैन इम्प्रूव इट जब तक क्लैट नहीं आ रहा। दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सीरियसली यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड 9 months you've got. It is a lot enough time to prepare for your CLAT exam and to actually get a better score. And to be honest, what score is a good score? To give you one particular answer, probably 75ish. It is a really good score if you are getting the score in October. अभी तो तुम्हारे 10 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। इट इज़ योर ट्राइंग, बिकॉज देखो यार अभी से स्कोर के पीछे भागोगे ना तो यू विल मिस द सीखने वाला एस्पेक्ट ऑफ क्लैट। अगर तुम इतना टाइम दे रहे हो अपनी प्रिपरेशन में तो यू हैव टू लर्न कि यार कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। जितनी गलतियाँ कर सकते हो करो, जो कर सकते हो करो। मॉक्स के साथ कभी सेफ मत खेलो। अगर तुम स्कोर्स के पीछे पड़ जाते हो ना तो तुम इस टाइम पर भी उन मॉक्स के साथ बहुत सेफ खेल रहे होते हो, विच इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, दिस इज़ अ टाइम जब तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे, एंड देन यू आर गोना रियलाइज कि यार क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है। सो एट दिस पॉइंट डोंट केयर अबाउट योर मॉक्स, जस्ट गो एंड गिव योर मॉक्स। And next question is, do you have to be dependent on your mock entirely? देखो यार तुम्हारा मॉक इसलिए तो होता ही नहीं है कि तुम्हारा स्कोर अभी क्या आ रहा है तो तुम्हारा स्कोर क्लैट में क्या आएगा। So you don't have to be dependent on your mock score entirely or at all, to be honest. देखो तुम्हारे मॉक का सीधा एक ही काम होता है, to evaluate your performance and tell you where you stand such that you can mend your preparation like that. जब तक तुम्हारे पास टाइम है, जब तक तुम अपना मॉक्स को इम्प्रूव कर सकते हो, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मॉक का सिंपल एक ही काम है, टू एवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस सो दैट यू कैन एक्चुअली फ्रेम योर स्ट्रैटेजी आगे जाके। आई होप इट शुड बी रियली क्लियर बाय नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शनल वर्सेस मॉक्स, व्हाट शुड यू गो फॉर? दोनों करने हैं, एक करना है, एक नहीं करना, सेक्शनल करें मॉक करें? देखा सेक्शनल्स एंड मॉक्स दोनों का ना एक अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। एट दिस पॉइंट तुम्हें ना बस एक मॉक देना है एक वीक में, और बाकी दिन तुम्हें सेक्शनल करने हैं। सेक्शनल्स होता है पर्टिकुलर प्रैक्टिस के लिए, एक पर्टिकुलर सेक्शन ठीक करने के लिए, राइट? जब तुम मॉक दे रहे होते हो तुम किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि तुम्हें वो मॉक कैसे देना है, 120 मिनट बैठना कैसे, उस पेपर से बेस्ट मार्क्स कैसे निकाल लें। तो मॉक का पर्पस तो डिफरेंट हो गया, राइट? तुम्हारे सेक्शंस का पर्पस होता है तुम्हें सिखाना, और तुम्हें ये धीरे धीरे यू लर्न फ्रॉम देयर, एंड धीरे धीरे
you stop doing the mistakes you were doing and everything. So basically your sections are for your practice, your sectional practice. If you are giving RCK section, then it is for to improve your score in RC. If you have low score in CR, then it is for to improve your score in CR. So sections and mocks both have a very very different purpose. You have to give sectionals as well as mocks. Both are really important. Sectionals you give along with your preparation, like one day you give RC sectional, next day you give a sectional of CR, and that is how it goes. Usually what I suggest people is that what section you should give in a day is, you should give 3 sections in a day. uh, uh, it should be like RC slash legal in one day, and CR plus QT every day, and GK you can practice as per your classes and in the mocks you give. So this is something you can go for. And concluding the video, I can't stress enough on this point. Like seriously, since I've started mentoring, I've been saying this continuously. मॉक एनालिसिस करो भाई. लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मॉक एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्या मॉक एनालिसिस नेसेसरी है. गाइस, वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप आंसर. मॉक एनालिसिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. देखो यार, मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे मॉक का पर्पस क्या होता है. टू टेल यू वेयर आर यू स्टैंडिंग, टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस सो दैट यू कैन प्रिपेयर लेटर. तो अगर तुमने मॉक दे के छोड़ दिया तो उस मॉक का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस मॉक का पर्पस ही फुलफिल नहीं हुआ. एक मॉक का पर्पस होता है कि तुम अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करो. कैसे करोगे? मॉक एनालिसिस करो यार पहले. तो मॉक तुम, मैं तो कहता हूँ कि तुम मॉक तुम देते ही मॉक एनालिसिस करने के लिए और किसी चीज़ के लिए देते ही नहीं हो, एंड विच स्टेज ट्रू ऑब्वियसली. तो सीरियसली saying it again, and I can't again stress enough on this point, कि mock analysis is very important. It's really important. So when you're giving a mock, make sure you never miss the mock analysis part. और अगर mock analysis नहीं करना तो mock दे ही क्यों रहे हो सीरियसली. और अगर तुम्हें जानना है मॉक एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, तो परी का ऑलरेडी वीडियो एक चैनल पर मॉक एनालिसिस को लेकर. और अगर तुम्हें फिर भी कुछ डाउट्स है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच अस ऑन आवर इंस्टा चैनल और ऑन आवर पर्सनल इंस्टा हैंडल्स, और ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन. बाकी देख लेंगे, एक और मॉक एनालिसिस पे वीडियो बना देंगे इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू गाइज. इफ़ एक्चुअली अगर मेरे एक वीडियो से तुम करने लग जाते हो मॉक एनालिसिस, दैट ग्रेट फॉर यू. सो टिल देन, until the next time, sayonara, take care and best of luck.